بہت زمانہ پہلے ایک خوبصورت ملک تھا جس کا نام چمک نگر تھا۔ اس ملک کے بادشاہ 11 اور رانی لیورا بہت نیک دل تھے۔ بادشاہ اور رانی کی بڑی خواہش تھی کہ انہیں ایک پیاری بیٹی ملے۔ کچھ دنوں بعد ان کی خواہش پوری ہوئی اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ محل میں روشنی، پھول اور خوشیوں کی بھرمار تھی۔ سب لوگ خوشی سے کہہ رہے تھے، مبارک ہو، راجکماری الارا کی پیدائش ہوئی۔ اچانک محل کے دروازے پر ایک سیاہ کپڑوں میں عورت آئی، جادوگرنی مورینا۔ یہ بچی مجھے دو، یہ میری طاقت کے لیے ضروری ہے۔ ہم کسی بری جادوگرنی کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ راجا 11 نے غصے اور ہمت کے ساتھ اپنا ہتھیار اٹھایا۔ اچانک اس ہتھیار سے تیز چمکتی ہوئی روشنی نکلنے لگی۔ جیسے ہی وہ جادوگرنی مورینا کی طرف بڑھی، پھر مورینا چیختی ہوئی بھاگ گئی۔ نہیں! محل میں سب لوگ کھڑے حیران تھے۔ آخر جادوگرنی مورینا شہزادی الارا کو لینے کیوں آئی تھی؟ وقت گزر گیا اور الارا اب 5 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ بہت معصوم اور نیک دل لڑکی تھی۔ سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ الارا کو سب سے زیادہ اپنی ماں لیویرا کی لوری پسند تھی۔ رانی ہمیشہ وہ لوری گاتی تھی اور الارا خوش ہو جاتی تھی۔ میری روشنی، میری الارا، میری چھوٹی پری، میری پیاری ستارہ، ہنستی رہو، کھیلتی رہو، ہر دن تمہاری خوشبو سے مہکتا رہوں، چمک کے پھولوں کی طرح، تتلوں کی طرح، میرے دل کی رانی۔ ایک دن جب الارا اپنے باغ میں اکیلی بیٹھی تھی تو جادوگرنی مورینا وہاں آ گئی۔ اس نے الارا کو ایک خوبصورت پھول دیا۔ جیسے ہی الارا نے وہ پھول چھوا، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد یہ فوراً آ گئے۔ دونوں ماں باپ نے محل، باغ اور آس پاس کی جگہوں پر الارا کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ محل میں اداسی چھا گئی اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اصل میں الارا غائب ہو کر ایک گہرے جنگل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ ڈری ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسی جنگل میں ایک لالچی عورت نے الارا کو دیکھا۔ اس عورت نے دل میں سوچا، یہ بچی میرے کام آ سکتی ہے۔ وہ عورت الارا کو پیار سے دیکھ کر بولی، پیاری بیٹی، تمہیں بھوک لگی ہے؟ یہ لو، سیب کھا لو۔ الارا نے معصومیت سے سیب لیا اور پھر وہ اس عورت کے ساتھ چلی گئی۔ 20 سال گزر گئے۔ اب الارا جوان ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی زندگی خوشیوں سے خالی تھی۔ الارا اب بھی اسی لالچی عورت کی قید میں تھی اور وہی عورت اسے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ الارا سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی، کبھی صفائی، کبھی کھانا پکانا اور کبھی پانی لانا۔ ایک دن وہ لالچی عورت غصے سے چیختے ہوئے بولی، الارا، جنگل جاؤ اور پھل توڑ کر لاؤ۔ موشی سے ٹوکری اٹھا کر جنگل کی طرف چل پڑی اور اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی کسی پھول یا پتے کو ہاتھ لگاتی تو وہاں سے ایک خوبصورت روشنی نکلتی۔ الارا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ وہیں قریب ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ جب اس نے یہ روشنی دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ سچ ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ الارا پھل توڑ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ فقیر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ فقیر نے جھوپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، بیٹی، مجھے بھوک لگی ہے، کیا مجھے روٹی مل سکتی ہے؟ الارا نے دروازہ کھولا اور اسے روٹی دے دی۔ جیسے ہی اس نے روٹی دی، فقیر کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔
उसके हाथ पर एक चमकता हुआ निशान था। फकीर हैरान होकर बोला, ये तो हमारी सल्तनत को बचाने वाली इलारा है। इतने में इलारा की सौतेली माँ वहां आ गई। वो गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। वो फकीर को डांट कर वहां से भगा देती है। फकीर तेजी से महल की तरफ भागा ताकि बादशाह और रानी को सच बता सके। लेकिन रास्ते में जादूगरनी मोरीना आ गई। उसने कहा, तुम बहुत कुछ जान गए हो, और उसने अपने जादू से उसे बेहोश कर दिया। और महल के बाहर एक फकीर अजीब हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। वो कमजोर और बेहोश सा लग रहा था। जब महल के बाहर शोर हुआ तो बादशाह 11 और रानी लिवेरा फौरन बाहर आ गए। उन्होंने फकीर को देखा और उसके पास आकर झुक गए। फकीर ने मुश्किल से आंखें खोली और बादशाह और रानी की तरफ देखा, जैसे वो कुछ अहम बात बताना चाहता हो। उसके होंठ हिलने लगे और वो टूटी हुई आवाज में कहने लगा, शहजादी इलारा जिंदा है। ये सुनकर बादशाह और रानी हैरान रह गए और उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। फिर बादशाह 11 ने ऐलान किया, जाओ सब लोग हमारी शहजादी इलारा को तलाश करो। हर जगह ढूंढो। जिस लड़की के हाथ पर शाही निशान हो वही हमारी शहजादी इलारा है। जो भी इलारा को ढूंढकर हमारे पास लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक दिन इलारा की सौतेली माँ टोकरी उठाकर जंगल जा रही थी। अचानक टोकरी में से एक बड़ा काला सांप निकला और उसने उसे काट लिया। वो जोर से चीखी, आ! वो जमीन पर गिर गई, मगर उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी चमक भी थी। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेट गई और कमजोर बनकर इलारा को बुलाया। इलारा, जल्दी आओ। इलारा घबराकर उसके पास आई। माँ, आपको क्या हुआ? सौतेली माँ ने आहिस्ता और कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मुझे बचा लो। सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। फिर उसने आंखें बंद करके कहा, महल के तह खाने में एक खास पत्थर है, छोटा सा मगर बहुत ताकतवर। वो रुक कर बोली, जैसे कोई राज छुपा रही हो, इसे सिर्फ तुम ही उठा सकती हो। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, जाओ वो पत्थर ले आओ, वरना मैं मर जाऊंगी। इलारा ये सब सुनकर हैरान और परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी सौतेली माँ उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। मगर माँ, मुझे महल का रास्ता नहीं पता। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? और मैं वो पत्थर कैसे उठा सकती हूँ? बादशाह के हुक्म के बाद पूरे शहर में ऐलान हो गया कि हर लड़की को महल में लाया जाए ताकि उसके हाथ और पांव देखे जाएं। सब लड़कियां एक एक करके महल में आने लगीं। सिपाही उनके हाथ गौर से देख रहे थे, मगर किसी में भी वो खास निशान नहीं मिला। इलारा भी चुपके से वहां पहुंच गई। वो पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। महल के बड़े हॉल में सब लोग जमा थे। वो आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, मुझे जादुई पत्थर चाहिए। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज गई। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। सिपाही, वजीर और खुद बादशाह और रानी भी चूक गए। मैं वो जादुई पत्थर उठा सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि मैं शहजादी हूँ। ये सुनकर बादशाह और रानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरत और सवाल था। अचानक महल के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। वो थी मुरीना। वो जोर से चीखे, नहीं, मैं हूं असल शहजादी, ये लड़की जादूगरनी है। सब लोग घबरा गए। इलारा हैरान होकर मुरीना को देखने लगी। मुरीना ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ पर एक काला शाही निशान चमक रहा था। इलारा ने भी अपना हाथ दिखाया। उसके हाथ पर एक सुनहरा रोशन जादुई निशान था। लोग और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए।
कौन सच बोल रहा है? इलारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आहिस्ता से बोली, मुझे वो जादुई पत्थर चाहिए। और इसी लम्हे महल की फजा बदलने लगी। इसी लम्हे महल के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। अचानक एक जादुई पत्थर हवा में उड़ता हुआ नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। उसकी रोशनी बहुत तेज और सुनहरी थी। सब लोग डर गए और हैरान होकर पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। मोरीना ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, ये मेरा है। वो पत्थर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर उसके हाथ से दूर हो जाता है और हवा में घूमता रहता है। फिर वो जादुई पत्थर सीधा इलारा की तरफ बढ़ता है और आकर उसके हाथ के सुनहरी निशान पर रुक जाता है। अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है। पूरा महल चमक उठता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बादशाह और रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है, यही हमारी असल शहजादी है। मोरीना गुस्से में आ जाती है। अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है। वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो चीख कर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। और इलारा से वो जादुई पत्थर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक पत्थर से एक जबरदस्त रोशनी निकलती है। वो रोशनी मोरीना को लगती है। मोरीना चीखने लगती है, नहीं! और आहिस्ता आहिस्ता जलती हुई गायब हो जाती है। महल में खामोशी छा जाती है। फिर अचानक खुशी की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग तालियां बजाने लगते हैं। सिपाही झुक जाते हैं और सब खुशी से चला उठते हैं। शहजादी इलारा वापस आ गई। हर तरफ फूल खिलने लगते हैं। रोशनी फैल जाती है और पूरी सल्तनत में खुशी छा जाती है।